परंतु सीधे अपने प्रसंग पे आएंगे, जल्दी करेंगे। Elijah was getting old, and he knew it wouldn't be long till he'd have to leave the world. एलिया बूढ़ा हो रहा था कि वो अब अधिक समय तक वो नहीं रहेगा, उसे संसार छोड़ना है। And God had found a man that was an honest man, that was a good man. His name was Elisha. और परमेश्वर ने एक व्यक्ति ढूंढ लिया जो कि ईमानदार है, वो अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम एलीशा था। Now, if you notice, one of them's name is Elijah, and the other is Elisha. अब यदि आप ध्यान दें, उनमें से एक का नाम एलिया और दूसरे का एलीशा था। Now, he never went down into the farms and so forth and went and founded the schools of theology up in the great high schools of those days. वो कभी भी खेतों में नहीं गया था और आदि आदि, और जाकर धार्मिक विद्यालय में पाया और उन दिनों के महान विद्यालय में। What did he do? उसने क्या किया? He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox. वो वहाँ खेतों में गया और एक व्यक्ति को पाया, वो 12वीं बैल की जोड़ी के साथ जुताई कर रहा था। What? Elisha, the one was plowing, knowed how to appreciate a straight row. क्या? एलीशा जो हल चला रहा था जानता था कि कैसे सीधी रेखा की सराहना की जाए। And he knowed if he turned and looked back, he'd wiggle off the road. और वो जान जाता यदि वो मुड़कर पीछे देखता कि वो मार्ग पर टेढ़ा मेढ़ा है। And God knows that a man that knows how to plow straight for, knows not to put his hands on the plow and even turn to look back. और परमेश्वर जान गया कि व्यक्ति जो जानता है कि कैसे सीधे सीधे जुताई करें, ये नहीं जानता कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर भी देखना है। He never waited till he got his education, wiggled along the road. जब तक उसने अपनी शिक्षा न पाली, उसने प्रतीक्षा नहीं की, मार्ग पर इधर उधर चलता रहा। He just killed the oxen, made a sacrifice, and took off with Elisha as soon as that man went over him. उसने बस बैलों को मारकर और बलिदान कर दिया और छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया जब तक वो कपड़ा उसके ऊपर था। He was ready, willing. वो तैयार, इच्छा रखने वाला था। God knowed he could make him able. परमेश्वर जानता था कि वो उसे योग्य बना सकता है। Now God's got to give him some training. अब परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना था। He's been training how to keep his eyes on the furrow with 12 yoke of ox and one man plowing with him. उसने उसे प्रशिक्षित किया था कि कैसे जुती हुई नाली पर अपनी दृष्टि रखनी है। बैलों की 12 जोड़ी और एक व्यक्ति उन्हें जोत रहा है। He taught him some patience. And how to be patient and train those ox to walk straight in the line. उसने उसे धीरज धरना सिखाया और कैसे धीरजवंत हो और उन बैलों को सीधी लाइन में चलने के लिए प्रशिक्षित करना था। He had trained some men afterwards. इसके पश्चात उसे कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना है। Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God. Stay straight in the line. उन्हें बाइबल पर ही रखना है, वचन पर, परमेश्वर की रेखा पर स्थिर रहना। And then even God had to school him a little bit. और तब परमेश्वर को भी उसे थोड़ा शिक्षित करना है। He said, now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called me. उसने कहा, अब तुम यहाँ रुको, क्योंकि मैं गिलगाल तक जाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. और भविष्यद्वक्ता उसके बाद जब उसने अनुभव किया कि सामर्थ उस पर है, वो एलिया की चादर, उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। Went on to Gilgal, which is the place of Christian confession and baptism. गिलगाल को गया, जो कि मसीह को स्वीकारने और बपतिस्मे का स्थान है। And then he said, just stay here now. This is good enough. और तब उसने कहा, अब थोड़ा यहाँ रुक, ये पर्याप्त है। You've made confession and baptism. This is good enough. तूने स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया है, ये पर्याप्त है। I'm going up to Bethel, which means the house of God. मैं बेतेल को जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। Now that would have been all right for many professors. अब ये बहुत से ज्ञानियों के लिए ठीक होगा। Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here? ओ, मैं अभी अभी कलीसिया में आया हूँ और संगति मिली है, क्यों ना यहाँ रुक जाऊँ। But listen, Elisha couldn't think that way. परंतु सुनिए, एलीशा इस प्रकार नहीं सोचता। He'd already felt the power of God. उसने पहले ही परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर लिया है। He knew there was more for him. वो जानता है मेरे लिए और भी है। So he said, as the Lord liveth and your soul liveth,
I'll not leave you. और इसलिए उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Oh, how I like that. Amen. ओ, मुझे ये कितना अच्छा लगता है। And he went up to the Bethel, to the house of God. And there he found a bunch of scholars. और वो बेतेल को गया, परमेश्वर का घर, और वहाँ उसे ज्ञानी लोग मिले। They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said, Sir, do you know what? You're on the little end of the stick. वे सब प्रशिक्षित अच्छे प्रचारक थे, और वे आए और उसे बताया, कहा, श्रीमान, तुझे मालूम है कि तू छड़ी के छोर पर है। Did you know Elisha's going to be taken away from you? He's too old. He can't live very long. क्या तुझे मालूम है एलिया तेरे से अलग किया जाने वाला है? वो बहुत बूढ़ा है, वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। Elijah's going to be taken, and you're going to be standing out there as a fanatic. एलिया ले लिया जाने वाला है, और तू वहाँ पागलों के समान खड़ा होगा। Let me tell you something now. अब मैं आपको कुछ बता दूं। A man that's ever tasted God will not be willing or cannot quench his thirst at a man-made cistern. एक मनुष्य जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है, नहीं चाहेगा अपनी प्यास को मनुष्य के बने हौद से नहीं मिटा सकता। You can't do it. वो ये नहीं कर सकता। All their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God who had a taste of God. उनकी सारी धार्मिक विद्या जो उन्होंने भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में पाई है, वो परमेश्वर के जन की प्यास को नहीं बुझा सकती, जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है। And they kept persuading him. और वे उसे राजी करते रहे। Oh, you should stay here, and why, in 6 weeks we could give you your PhD. ओ, तुम्हें यहाँ रह जाना चाहिए, और क्यों, हम तुम्हें 6 सप्ताह में तुम्हारी PhD दे देंगे। And you know it wouldn't be very long till you take about 4 years of training here, and we could give you the right to preach. और तुम देखो, ये बहुत लंबा ना होगा कि तुम अपने 4 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे, और हम तुम्हें प्रचार करने का अधिकार देंगे। You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination. देखो, यदि तुम सही सिद्ध हुए तो हम तुम्हें अपने नामधारी में भेज देंगे। That won't satisfy a man of God. परमेश्वर के जन को ये संतुष्ट नहीं कर सकेगा। We'll train you to be a minister. If you just stay with us about 4 or 5 years, you're... हम तुम्हें सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे, यदि तुम हमारे साथ यहाँ 4-5 वर्ष रुको। He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain. उसके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं था, वो तो मार्ग पर उस सोते के लिए बढ़ा जा रहा था। He'd done come above that. वो इस सब को छोड़कर ऊपर आ चुका था। He'd done had a taste of heaven in his soul. वो कर चुका था, उसके प्राण में स्वर्ग का स्वाद था। And he said, do you know your head's going to be taken away? और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नेतृत्व उठा लिए जाने वाला है? And listen to what he said. और सुनिए कि उसने क्या कहा। Yes, I know it, but hold your peace. जी हाँ, मैं ये जानता हूँ, परंतु आप शांत रहें। In other words, save your breath. Don't try to tell me about it. दूसरे शब्दों में, तुम अपना ध्यान करो, मुझे इस विषय में बताने का यत्न न करो। Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after. मुझे बताने का यत्न न करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके पीछे हूँ। God give us men like that, God-trained man, who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that. परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति दे जो परमेश्वर के प्रशिक्षित मनुष्य, जो कभी इधर उधर ना होना जानता हो। I know where I'm going, and don't speak to me about it. Just hold your breath. मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझसे इस विषय में बात ना कीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखें। Don't try to discourage me because it isn't going to do any good. मुझे निराश न करें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। Oh, if the people's prayed for would just have that much courage. ओ, यदि वे लोग जिनके लिए प्रार्थना की गई है उनके पास भी इतनी हिम्मत होती। Oh, the days of miracles is past. That wasn't real. You watch, you'll get sick again. ओ, आश्चर्यक्रम के दिन बीत गए, ये वास्तविक नहीं था। आप देखिए, आप फिर बीमार हो जाएंगे। Just hold your breath. Don't tell me nothing about it. I'm moving on. केवल धैर्य रखें, मुझे इस विषय में कुछ न बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। The revival's coming. God's promised it. बेदारी आ रही है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा कर दी है। Oh, you sons of God, move out into that sphere yonder. Fearless, fearless. ओ, तुम परमेश्वर के पुत्रों, उस क्षेत्र में से निडर होकर के निकल चलो,
निडर। Take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर लीजिए। I know He's going to be taken away, but that isn't what I'm. You haven't got nothing here to interest me. मैं जानता हूँ कि वो उठा लिए जाने वाला है, परंतु ये वो नहीं है जिसके लिए मैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि हो। All your degrees and PhDs and Bachelor of Art and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath. तुम्हारी सारी डिग्रियां, PhD और कला स्नातक और ये सारी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करती हैं। Well, Elisha's going to Jordan. ठीक है, एलीशा यरदन को जा रहा है, I'm going with him. मैं उसके साथ जा रहा हूँ। God requires Jordan in every life. परमेश्वर हर एक के जीवन में यरदन चाहता है। So Elisha come around and said, "Now, Elisha," Elijah said to Elisha, "You're just a young man, perhaps something like this. And really you haven't had any schooling." इसलिए एलीशा आता है, कहा, अब एलीशा, एलिया ने एलीशा से कहा, तुम अभी नवयुवक हो, संभवतः इस प्रकार से, और वास्तव में तुमने कभी शिक्षा नहीं पाई। The old prophet was trying to try him out. बूढ़ा भविष्यवक्ता उसकी परीक्षा लेने का यत्न कर रहा था। He said, "You're just a young man, you haven't had much schooling. उसने कहा, तुम अभी एक नवयुवक हो, तुमने अधिक शिक्षा नहीं पाई है। Why, you haven't had a grammar school education. क्यों नहीं तुम? ये वास्तव में तुम्हारे पास व्याकरण विद्यालय की शिक्षा नहीं है। Only thing you know do is how to plow. केवल तुम इतना जानते हो कि जुताई कैसी की जाए। So you better stay here and get your Bachelor of Art. See? इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं ठहरो और तुम्हें कला स्नातक की डिग्री मिल जाए। देखा? You better stay and get your degree. अच्छा है कि तुम यहाँ रुको और अपनी डिग्री ले लो। Not Elisha, not that man who once touched God, felt that power of the anointing upon him. परंतु एलीशा वो व्यक्ति नहीं था जिसने एक बार परमेश्वर को छुआ हो और अपने ऊपर अभिषेक की सामर्थ को अनुभव किया हो। He said, "As the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you." उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। He had a purpose. He saw the vision. He knew what was going to take place. उसका एक उद्देश्य था, उसने दर्शन देखा, वो जानता था कि क्या घटित होने वाला है। And they both went down to Jordan. और वे दोनों यरदन पर चले गए। Jordan means death. यरदन का अर्थ मृत्यु है। There they stand, the old man and the young man. It really represents Christ and His church. वहाँ वे खड़े होते हैं, एक बूढ़ा और एक युवक। ये वास्तव में मसीह और उसकी कलीसिया को दर्शाता है। And there they stood by the Jordan. और वहाँ वे यरदन नदी के किनारे खड़े हैं। There she is coming down out of the Judean hills. The great ripples are roaring like that. वहाँ वो यहूदा की पहाड़ियों पर से आती है, चीरती हुई, बड़ा कोलाहल करती हुई इस प्रकार से। And Elisha with his gray hair hanging down his back, with his dimmed old eyes looking across Jordan, and the young man watching every move that he made. और एलीशा अपने पीछे सफेद लटकते बालों के साथ और उसकी धुंधली आंखें यरदन के पार देख रही हैं, और ये नवयुवक उसके हर कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहा है जो वो कर रहा है। One, the young man was waiting for a vision to carry out the will of God. एक नवयुवक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। The other was going home. There's both at Jordan. दूसरा घर जाने को था, वे दोनों यरदन पर थे। Elisha to him, he's going home. एलीशा उसके लिए वो घर जा रहा है। Elisha had a bitter life. एलिया का जीवन कड़वाहट से भरा था। That woman preacher down there gave him a rough way to go. Jezebel. And Ahab. वहाँ उस महिला प्रचारक ने जीवन में उसे तंग किया था, इजाबेल और आहाब। And the stones. And all that he had went through. Elisha was getting tired. और वे पत्थर और वे सब जिसमें से होकर वो निकलता था, एलिया थक गया था। And he knew that he had fought a good fight. And he had finished the course. और वो जानता था कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी दौड़ को पूरा किया। Just across Jordan, his retirement laid. यरदन के पार उसका अवकाश ग्रहण करना था। But Elisha was watching for that spirit was on him. परंतु एलीशा उस आत्मा को देख रहा था जो उस पर थी। So if you notice, every believer, when you come to a place where you have to set up, you'll feel the cold waves of Jordan lapping at your feet. इसलिए यदि आप ध्यान दें कि प्रत्येक विश्वासी जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहां आपको अनुकरण करना है,
तब आप यर्दन की ठंडी लहरों को अपने पैरों पे चढ़ते हुए अनुभव करेंगे। Are you going across or are you not? क्या आप पार जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं? Jordan is separation. Separating. यर्दन एक अलगाव, अलग करती है। And standing back on the hill was these preachers yet hollering to Elisha, you better not go over. You're going to go overboard. और वहाँ पीछे पहाड़ियों पर वे प्रचारक थे, अभी भी इलीशा को पुकार रहे थे, अच्छा है कि तुम पार ना जाओ, तुम अधिक दूर निकल जाओगे। You hear them remarks yet today. वे आज भी यही टिप्पणी करते हैं। Well, Elisha said, if God is God, and that's His promise, I've got to take His place. And I need His Spirit to do it with. परंतु इलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर परमेश्वर है और ये उसका भविष्यद्वक्ता है और मुझे उसका स्थान लेना है और कार्य करने के लिए मुझे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। Stood with him at Jordan. इसलिए वो उसके साथ यर्दन पर खड़ा हुआ। Elisha looking up there, knowing somewhere across there, God would meet him. एलिया उधर देख रहा था, वहाँ कहीं उस पार परमेश्वर उससे भेंट करेगा। And he took off his robe and he looked around to the young man. And he smote the Jordan. और उसने अपना वस्त्र उतारा और उसने नवयुवक की ओर देखा और उसने यर्दन को मारा। And when he did, the Jordan opened up and they walked over on dry land. और जब उसने ये किया, यर्दन खुल गई और वे सूखी भूमि पर से होकर पार चले गए। See, the Jordan ain't so bad after all. Amen. If there's something with you to open up the way. देखिए, जो भी है, यर्दन इतनी बुरी नहीं थी यदि आपके पास कुछ है कि मार्ग बना दे। Oh, when they hit the other side. ओ, जब वे उस पार पहुँचे, Hooked to every bush was a horse and a chariot. हर झाड़ी जिसमें उलझते थे, घोड़ा और एक रथ था। The King of Kings had sent an escort to bring Elijah up home. राजाओं के राजा ने एलिया को घर वापस लाने के लिए रक्षक भेजा था। All over for Elijah. ये केवल एलिया के लिए था। He'd had enough of about 80-something years of fussing with them people down there and having to go through hungers and stripes and everything else. He was ready to go home. उसके जीवन में बहुत हो चुका था, लगभग 80 वर्षों के आसपास उन लोगों में था और भूख में, झगड़ों में और सब में से निकला था। वो घर जाने के लिए तैयार था। And he looked around to Elisha. And Elisha wanted to see a vision. और उसने इलीशा को देखा और इलीशा एक दर्शन देखना चाहता था। Oh, he had all the schooling back there. He could stop that. They wasn't getting nowhere. वो उसके पीछे वहाँ जितनी शिक्षाएं चल रही थी, वो उन्हें रोक सकता था, वे कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे थे। God was going to train him his own way. परमेश्वर उसे अपनी विधि से प्रशिक्षित करने जा रहा था। So when he looked over there, looked all them bushes hooked around there, these chariots of fire and horses of fire. It done something to Elisha. इसलिए जब उसने वहाँ देखा कि सारी झाड़ियाँ जो वहाँ पर थीं, वे आग के रथ और आग के घोड़े, इसने इलीशा के साथ कुछ किया। He saw a vision. उसने एक दर्शन देखा। Yes, brother. And when God taken Elijah up, he came back with the double portion of his spirit. हाँ भाई, और जब परमेश्वर ने एलिया को ऊपर उठा लिया, तो वो अपने आत्मा के दूने भाग के साथ वापस आया। He was ready for the revival then. तब वो बेदारी के लिए तैयार था। You notice the man then being just a plowboy before. अब उस व्यक्ति को देखिए जो थोड़ा पहले हल जोतने वाला लड़का था। God made his name immortal. परमेश्वर ने उसका नाम अमरणहार बना दिया। All the prophets that stood around watching him had to bow to his feet because he had the power of God upon him. सारे भविष्यद्वक्ता जो चारों ओर खड़े उसे देख रहे थे, उन्हें उसके कदमों पर झुकना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर थी। There's coming an hour when God shall make the world bow at the feet of men and women who have plunged through and crossed Jordan and separate themselves from the things of the world. अब वो घड़ी आ रही है जब परमेश्वर संसार को उन पुरुषों और महिलाओं के कदमों में झुका देगा, जिन्होंने गोता मार के और यर्दन को पार किया और अपने आप को संसार की वस्तुओं से अलग कर लिया। Brothers and sisters, tonight, whatever you do, whatever you think, you cross Jordan with God. भाई और बहन, आज रात्रि आप जो भी करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप परमेश्वर के संग यर्दन को पार करें। Go on over, separate, leave the world behind. आगे बढ़िए और अलग हो जाएं, संसार को पीछे छोड़ दें। Let God train you for His own service. परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षित करे। We are living in a day before this revival.
But God's searching out, trying to find hearts. इस बेदारी से पहले के दिनों में हम रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, हृदयों को खोजने का यत्न कर रहा है।